بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی محمد وعلی آل محمد وعلی اصحاب محمد دائما ابدا۔ عزیزان محترم، آج ہم نومیر کا 8واں سبق پڑھیں گے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے مورب اور مبنی کی تقسیمات کے بارے میں پڑھا تھا۔ مبنی کی دو قسمیں ہیں، مبنی الاصل، مشابہ مبنی الاصل۔ مبنی الاصل کی 3 قسمیں ہیں، مشابہ مبنی الاصل کی بھی 3 ہی قسمیں ہیں۔ مشابہ مبنی الاصل کی پہلی قسم ہے اس میں غیر متمکن۔ آج ہم اس میں غیر متمکن کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس میں غیر متمکن وہ اسم ہوتا ہے جو مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت رکھتا ہو۔ اس میں غیر متمکن کی 8 قسمیں ہیں، مضمرات، اسماء اشارات، اسماء موصولہ، اسماء افعال، اسماء اصوات، اسماء کنایات، اسماء ظروف، مرکب بنائی۔ یہ 8 قسمیں ہیں اس میں غیر متمکن کی۔ پہلی قسم مضمرات کے بارے میں ہے۔ مضمرات مثمر کی جمع ہے، اور مثمر اور ضمیر یہ ایک ہی چیز کی کہہ لیں کہ 2 نام ہیں۔ آج ہم ضمیر کے بارے میں پڑھیں گے۔ ضمیر کی تعریف سماعت فرما لیں۔ ضمیر وہ اس میں غیر متمکن جو متکلم، مخاطب یا ایسے غائب پر دلالت کرے جس کا ذکر پہلے لفظاً، معناً یا حکماً ہو چکا ہو۔ دوبارہ سن لیں، ضمیر وہ اس میں غیر متمکن ہے جو متکلم، مخاطب یا ایسے غائب پر دلالت کرے جس کا ذکر پہلے لفظاً ہو چکا ہو، معناً ہو چکا ہو یا حکماً ہو چکا ہو۔ ضمیر کی 2 طرح سے ہم تقسیم کریں گے، ایک مرفوع، منصوب اور مجرور کے حوالہ سے، اور دوسری ضمیر مستتر اور بارز کی حوالہ سے ضمیر کی تقسیم کریں گے۔ پہلی تقسیم کی طرف آتے ہیں۔ ضمیر کی 3 قسمیں ہیں، مرفوع، منصوب، مجرور۔ مرفوع جو محل رفع میں واقع ہو، منصوب جو محل جر میں واقع ہو، اور مجرور جو محل جر میں واقع ہو۔ مطلب اس کا یہ ہے محل رفع میں واقع ہونے کا کہ جہاں ضمیر مرفوع ہوگی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس ضمیر کی جگہ اس میں ظاہر آتا تو وہ مرفوع ہوتا۔ جہاں منصوب ہوگی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جگہ پر اگر اس میں ظاہر یعنی مورب آ جاتا تو وہ منصوب ہوتا۔ اور مجرور کا بھی مطلب یہی ہے کہ اس کی جگہ اگر اس میں ظاہر مورب آتا تو وہ مجرور ہوتا، اس کے نیچے زیر آتی۔ مرفوع، منصوب، مجرور، یہ ضمیر کی پہلے ابتداء 3 قسمیں۔ اب ضمیر مرفوع اور ضمیر منصوب کے آگے 2 قسمیں ہیں، اور ضمیر مجرور کی ایک ہی قسم ہے۔ ضمیر مرفوع کی کون سی 2 قسمیں ہیں؟ ضمیر مرفوع متصل، ضمیر مرفوع منفصل۔ اسی طرح منصوب کی بھی 2 قسمیں ہیں، ضمیر منصوب متصل، ضمیر منصوب منفصل۔ اور ضمیر مجرور کی ایک ہی قسم ہے، ضمیر مجرور متصل۔ ان کی تعریفات اور ضمیریں کون کون سی ہیں دیکھیں ذرا۔ ضمیر مرفوع متصل تعریف کیا ہے؟ وہ ضمیر جو محل رفع میں واقع ہو اور اپنے عامل کے ساتھ ہو۔ وہ ضمیر جو محل رفع میں واقع ہو اور اپنے عامل کے ساتھ ہو۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں فعل ماضی مطلق مثبت معروف کی گردان، ضربا، ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا، ضربنا، ضربتا، ضربتما، ضربتم، ضربتی، ضربتما، ضربتن، ضربتو، ضربنا۔ اب اس پوری گردان میں 14 صیغے، اور 14 صیغوں میں ہی جس ضمیر کا استعمال ہوا وہ مرفوع متصل ہے، اپنے عامل کے ساتھ ہے۔ تھوڑا سا فرق ہے کہ 2 صیغوں میں وہ ضمیر عامل کے اندر موجود ہے، اور بقیہ 12 صیغوں میں عامل کا جز بنی ہوئی ہے، بنتی یہ فاعل ہی ہے۔ ہمیشہ جہاں پر بھی ضمیر مرفوع متصل ہوگی وہ فاعل بنے گی، لیکن فرق یہ ہے کہ صیغہ ضربا اور صیغہ ضربت، صیغہ واحد مذکر غائب، صیغہ واحد مؤنث غائب، ان میں یہ ضمیر ان عامل میں موجود ہے۔ ضربا میں ہوا ضمیر اور ضربت میں ہیا ضمیر۔ اس کے علاوہ بقیہ جو 12 صیغے ہیں ان تمام میں یہ ضمیر جزو فعل بنتی ہے، جزو عامل بنتی ہے، عامل کے اندر نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر ضربتو، اب اس میں ضمیر تو ضمیر ہے، ضربنا اس میں نون الف نا ضمیر ہے، اور ضربتا اس میں تا ضمیر ہے، ضربتی اس میں بھی تا ضمیر ہے، ضربتما اس میں تما ضمیر ہے، ضربا اس میں الف ضمیر ہے۔ تو یعنی صرف 2 صیغے ہیں جہاں پر ضمیر مرفوع متصل اپنے عامل کے اندر موجود ہے، بقیہ صیغوں میں وہ عامل کے ساتھ ہوتی ہے، جزو فعل ہوتی ہے، اور یہ ضمیر چاہے اندر ہو چاہے ساتھ ہو یہ ہمیشہ فاعل بنتی ہے۔ اس کا حکم یہ ہے۔ دوسری ضمیر مرفوع کی قسم ہے منفصل۔ یہ منفصل کی تعریف کیا ہے؟
وہ جو محل रफा में वाक़ हो और अपने आमिल से जुदा हो, जैसे आना, नाहनो अभी अपने आमिल से जुदा है। इसी तरह अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना और हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, ये ज़मायर मरफू हैं, मुनफसिल हैं। तारीफ क्या है? वो जो महल रफा में वाक़ हो और अपने आमिल से जुदा हो। अब ये तरकीब में अक्सर तौर पर मुब्तदा वाक़ होती है, अक्सर तौर पर जहां भी आएगी ये मुब्तदा वाक़ होगी। हाँ, कभी कभार ऐसा होता है कि ये ताकीद बन जाती है और अपने मुअक्कद के साथ मिलकर मानवी तौर पर फाइल बनती है, वगरना ये वाली ज़मीर उमूमन जहां भी तरकीब में आए, इबारत में आए, ये मुब्तदा वाक़ होती है। तो ज़मीर की जो 3 किस्में, मरफू, मंसूब, मजरूर, उसमें से मरफू को हमने पढ़ लिया। मरफू की 2 किस्में, मुत्तसिल, मुनफसिल। मुत्तसिल किसे कहते हैं? महल रफा में वाक़ हो, आमिल के साथ हो। आमिल के साथ होने का मतलब यह है कि 2 सीगों में आमिल के अंदर होगी और बकिया सीगों में जुज़वी आमिल होगी, फेल का जुज़ बनेगी। और मुनफसिल जो महल रफा में वाक़ हो और अपने आमिल से अलहदा हो, ये उमूमन तरकीब में मुब्तदा बनती है। कभी कभार ये ताकीद होती है और मुअक्कद के साथ मिलकर आमिल मानवी तौर पर ये फाइल बन जाती है। मंसूब की भी 2 ही किस्में, मुत्तसिल और मुनफसिल। मंसूब मुत्तसिल किसे कहते हैं? वो ज़मीर जो फेल के साथ मिली हुई हो और मफूल बिही बने, या फिर उन हुरूफ के साथ मिली हुई हो जो अपने इसम को नसब देते हैं। इसकी मिसाल जरा देखें, दाराबा नी, दाराबा, दाराबा ना, दाराबा नी, दाराबा ना। तो ये दाराबा फेल है, आगे नून विकाया या ज़मीर है, मुतकल्लिम की ज़मीर है, वाहिद मुतकल्लिम की। अब ये फेल के साथ मिली हुई है, अलहदा इसका तलफ़ुज़ नहीं हो सकता, अलहदा से ये नहीं पढ़ी जा सकती, अपने आमिल के साथ मुत्तसिल होती है, अपने आमिल से जुदा होकर ये नहीं पढ़ी जाती। इसी तरह दाराबा ना, ये भी अपने आमिल के साथ मिली हुई है, लेकिन ये ना तो जोश है उसका और ना ही उसके अंदर मौजूद है, तो ये ज़मीर मंसूब मुत्तसिल यानी मफूल बिही बनती है। या फिर फेल के साथ मिली हो, मफूल बिही बने, या फिर उन हुरूफ के साथ जो अपने अस्मा को नसब देते हैं, जैसे इन्ना, हु, ठीक है, इन्ना हुरूफ मुशब्बह बिल फेल है और ये अपने इसम को नसब और खबर को रफा देता है। तो इन्ना के साथ जो ज़मीर आएगी वो भी मंसूब मुत्तसिल होगी। मंसूब मुनफसिल की तारीफ, वो जो महल नसब में वाक़ हो और फेल के साथ, आमिल के साथ मिली हुई ना हो, जुदा हो। इसकी आसान पहचान है वो ज़मायर जो इया से शुरू होती हैं, इया, इया ना, इया खा, तो ये ज़मीर भी मफूल बिही बनती है। लेकिन आसान पहचान इसकी यही है कि जो इया से शुरू होती हैं वो ज़मायर मंसूब मुनफसिल होती हैं। ज़मीर की तीसरी किस्म है मजरूर, और इसकी आगे सिर्फ एक ही किस्म है मुत्तसिल, ये मुनफसिल नहीं होती। मुत्तसिल किस तरह होगी? मुत्तसिल का माना मिला हुआ होना है। ये किसके साथ मिली होगी? या तो हुरूफ जारा में से किसी हर्फ के साथ मिली होगी, या फिर अस्मा में से किसी इस्म के साथ, जैसे लहू, बिही, गुलामी। तो गुलाम इसम है, आगे ज़मीर आ गई, मजरूर मुत्तसिल है, गुलाम मुदाफ, ये मुदाफिल है। लाम हरफ जारा, बी हरफ जारा, बा, आगे ज़मीर आ गई, तो ये भी मजरूर मुत्तसिल। मजरूर मुत्तसिल है या तो हुरूफ जारा के साथ है, ये पक्का कायदा है कि हुरूफ जारा के साथ आने वाली और इस्म के साथ आने वाली जो ज़मायर होती हैं वो मजरूर मुत्तसिल होती हैं। तो ज़मीर की एक तकसीम जो थी वो हमने पढ़ ली है। ज़मीर की इब्तिदा 3 किस्में, मरफू, मंसूब, मजरूर। फिर मरफू मंसूब में से हर एक की 2-2 किस्में, मुत्तसिल, मुनफसिल, और मजरूर की एक ही किस्म है मुत्तसिल। ये ज़मीर हैं कौन सी, बनती क्या है, तरकीब में क्या बनती हैं, ये हमने पढ़ लिया। अब ज़मीर की दूसरी तकसीम की तरफ आते हैं कि ज़मीर या तो मुस्ततिर होगी या फिर बारिज होगी। मुस्ततिर का माना होता है जो छुपी हुई हो, लफ्जों में जाहिर ना हो और पढ़ने में ना आए, और बारिज का माना होता है जो जाहिर हो और पढ़ने में भी आए। ज़मीर 2 तरह की होती हैं, चाहे वो मरफू हो, मंसूब हो, मजरूर हो, वो या तो बारिज होंगी या फिर मुस्ततिर होंगी। ये याद रख ले कि ज़मीर चाहे मरफू है, चाहे मंसूब है, चाहे मजरूर है, या तो मुस्ततिर होगी
या बारिद होगी, यानी या तो पढ़ने में आएगी, लफ्जों में मौजूद होगी, जाहिर होगी, या फिर लफ्जों में जाहिर नहीं होगी, पढ़ने में नहीं आएगी, उसको मुस्ततिर कहेंगे। और आगे आसान पहचान है, बारिश जो जाहिर होती है, पढ़ने में आती है, उसको बारिश कहा जाता है। और ज़मीर बारिश जो है ये मजरूर हो, मंसूब हो, मरफू मुनफसिल हो, ये सारी की सारी बारिश हैं। मरफू मुनफसिल, मजरूर मुनफसिल हो, मुत्तसिल हो, मंसूब मुत्तसिल हो, मुनफसिल हो, यानी मरफू मुत्तसिल के अलावा जितनी भी ज़मीरें हैं, मरफू मुत्तसिल के अलावा जितनी भी ज़मीरें हैं वो सारी की सारी बारिश हैं। मरफू मुत्तसिल के अलावा ज़मीरें जितनी भी हैं बारिश हैं। मरफू मुत्तसिल के अलावा बाकी जितनी भी ज़मीरें हैं वो सारी की सारी बारिश हैं। मरफू मुत्तसिल की कुछ ज़मीरें जो हैं वो मुस्ततिर हैं और उनमें से भी कुछ बारिश हैं। अब जो मरफू मुत्तसिल है, अब आगे आप ये कह सकते हैं कि ये भी दो तरह की होती है, कुछ बारिश में आ जाएंगी और कुछ मुस्ततिर में आ जाएंगी। मुस्ततिर में कौन सी आएंगी? आगे जो मुस्ततिर में आएंगी उनकी भी दो किस्में हैं, जो छुपी हुई होंगी, लफ्जों में नहीं आएंगी, मुस्ततिर होंगी, उसकी भी दो किस्में हैं। एक है जायजुल इस्तितार, एक है वाजिबुल इस्तितार। जायजुल इस्तितार किसे कहते हैं? तारीफ समाअत फरमा ले, वो ज़मीर जिसकी जगह इसमें दायर फाइल बन के आ सके। वाजिबुल इस्तितार वो ज़मीर है जिसकी जगह इसमें दायर फाइल बन के ना आ सके। जायजुल इस्तितार कहां पर वाक़ होगी? यानी ज़मीर मरफू होगी, मुत्तसिल होगी, क्योंकि मरफू मुनफसिल हो, मंसूब मुत्तसिल मुनफसिल हो, मजरूर मुत्तसिल हो, ये तो मुस्ततिर हो ही नहीं सकती। मुस्ततिर होना सिर्फ और सिर्फ ज़मीर मरफू मुत्तसिल ने, और मुत्तसिल ने भी तमाम ज़मीरों ने नहीं, सिर्फ माजी के दो सीगों में, सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब, सीगा वाहिद मुअन्नस गायब, माजी के इन दो सीगों में सिर्फ ज़मीर जो है जायजुल इस्तितार होगी। बाकिया में वैसे ही बारिज है, बाकिया माजी के जितने भी सीगे हैं उनमें ज़मीर बारिज है, उनमें मुस्ततिर है ही नहीं। और इन दो सीगों में मुस्ततिर है और जायजुल इस्तितार है, यानी इनकी जो ज़मीर हुआ और हिया है, इनकी जगह कभी इसमें ज़ाहिर फाइल बन के आ सकता है और कभी नहीं आता। मुजारे के 5 सीगों में ज़मीर मुस्ततर होती है, 5 सीगों में ज़मीर मुस्ततिर, सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब, सीगा वाहिद मुअन्नस गायब, सीगा वाहिद मुज़क्कर हाज़िर, वाहिद मुतकल्लिम, जमा मुतकल्लिम। इनमें 2 में जायजुल इस्तितार होती है, 3 में वाजिबुल इस्तितार। जायजुल इस्तितार सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब, वाहिद मुअन्नस गायब, और वाजिबुल इस्तितार 3 सीगों में वाहिद मुज़क्कर हाज़िर, वाहिद मुतकल्लिम, जमा मुतकल्लिम। इन 3 में भी ज़मीर मुस्ततिर होती है, लेकिन ये वाजिबुल इस्तितार है। सीगा वाहिद मुज़क्कर हाज़िर, वाहिद मुतकल्लिम, जमा मुतकल्लिम। इसमें अंता, वाहिद मुतकल्लिम में आना और जमा मुतकल्लिम में नहनु, इनकी जगह इसमें ज़ाहिर कभी भी फाइल बनकर नहीं आ सकता। और कहां जायजुल इस्तितार होती है और वाजिबुल इस्तितार? ये सीगा सिफत के वाहिद मुज़क्कर और वाहिद मुअन्नस के सीगों में भी जो ज़मीर होती है जायजुल इस्तितार होती है। सीगा सिफत कौन से? इसमें फाइल, इसमें मफूल और सिफत मुशब्बा। इसमें फाइल का दारिबतुन और दारिबुन, यानी दारिबुन और दारिबतुन, सीगा वाहिद मुज़क्कर, सीगा वाहिद मुअन्नस। इसी तरह इसमें मफूल के 2 सीगे मदरूबुन और मदरूबतुन, और इसी तरह सिफत मुशब्बा के 2 सीगे, वो कौन से? करीमतुन और करीमुन, ये 2 सीगे वाहिद मुज़क्कर वाहिद मुअन्नस, इनमें भी ज़मीर जायजुल इस्तितार होगी। तस्निया और जमा के सीगे हैं, सीगा सिफत के तस्निया और जमा के सीगे हैं, उनमें ज़मीर मुस्ततिर होगी, और मुस्ततिर कौन सी? वाजिबुल इस्तितार होगी। दारिबाने, दारिबाने, दारिबूना, मदरूबाने, मदरूबूना, करीमाने, करीमूना, इनमें जो ज़मीर है वाजिबुल इस्तितार है और ये मुस्ततिर वाजिबुल इस्तितार होगी, यानी ये भी क्या कहते हैं उसको, बारिश नहीं होगी। तो ज़मीर मुस्ततिर जो है उसकी 2 किस्में हो गई, जायजुल इस्तितार, वाजिबुल इस्तितार। जायजुल इस्तितार माजी के 2 सीगों में, मुजारे के 2 सीगों में,
صفت مشبہ اسم فاعل اسم مفعول کے صیغہ واحد مذکر واحد مؤنث کے صیغوں میں ضمیر جائز الاستتار ہوتی ہے، تاریخ میں نے آپ کو بتا دی کہ جس کی جگہ اسم ظاہر فاعل بن کے آ سکے۔ واجب الاستتار صیغہ جو ہے مضارع، اس کے 3 صیغوں میں صیغہ واحد مذکر حاضر، واحد متکلم، جمع متکلم، اور صفت مشبہ اسم فاعل اسم مفعول کے تثنیہ اور جمع کے صیغوں میں ضمیر مرفوع ہوگی، متصل ہوگی اور مستتر ہوگی اور واجب الاستتار ہوگی۔ اس کے علاوہ جو ضمائر ہیں وہ ساری کی ساری بارز ہوں گی۔ یہ آج کا سبق ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔